Well, this you could call a personal and an emotional statement made by the Prime Minister. But the country is fortunate to hear from the Prime Minister a reaction. We have always been dying to hear a reaction from the Prime Minister. And thanks to Team Anna, that they could extract a reaction from the Prime Minister. Possibly the Prime Minister has made a statement in anguish. We can make out from the words itself. BJP never wants to say that the Prime Minister is dishonest. But there are ample reasons to say that he heads a very dishonest government. BJP has no reasons to say that the Prime Minister is dishonest. But there are cabinet ministers in his government who go to jail. The present issue which has excited the Prime Minister is about the charge of Team Anna, in which they have taken reference of a coal scam in which the CAG has possibly reported a loss or a loot of 10 lakh crores, and these figures are varying. But isn't it a fact that whatever may be the cause of anguish of the Prime Minister, isn't it a fact that the Prime Minister has been the Cabinet Minister of the Coal Ministry from 2005 to 2009, when all these coal blocks were allotted to private entrepreneurs? Can we deny this fact? And here is a Prime Minister who's gone for a grandstanding and says, I would resign if my charges are proved. Well, we would suggest, and I think it would be proper for the BJP to suggest as a national opposition party to the Prime Minister, let there be an honest inquiry into it. If you feel that the charges are not correct, let there be a SIT constituted by the government, or maybe ask the Supreme Court to constitute a group and constitute an SIT, because this charge has been made against the Prime Minister. Why go for a political grandstanding and say that he is disturbed, he is anguished? Let there be a full and fair inquiry, because the government has been a suspect. The Prime Minister also gave a clean chit to his government, to his ministers when it was the 2G scam. Finally, the Supreme Court intervened and there was a scandal of 1,76,000 crores. Similarly, the Congress party had earlier given a clean chit on the Commonwealth Games. The Prime Minister constituted a group to inquire into it. That report was rubbished by the Chief Minister of Delhi. So there have been occasions where it's a Goa mining scam, where it's the Aircel Maxis deal which possibly has charges against the present Home Minister and his son as well. So there are so many things which is happening every day. So here is a Prime Minister who says, I am honest, but I do have a reasonably dishonest government. The Bharatiya Janata Party would like to flag this issue in front of the country. And the last statement which I would like to make, that the Caesar's wife is the old Shakespearean quote which I would like to say, that Caesar's wife should be above suspicion, and this is what we expect the Prime Minister of India, Mr. Manmohan Singh, to be. Thank you. ये देश के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कुछ कहा है, उनका कुछ रिएक्शन आया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे टीम अन्ना को कि कम से कम उनके आरोपों के आधार पर देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के समक्ष अपना एक बयान जारी किया है, जो अपने आप में आश्चर्यजनक है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को इस देश की जनता बोलते हुए सुने, एक अनौपचारिक रिएक्शन सुने,
ये बिरले होता है। संभवतः देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह म्यांमार से निकलने के पूर्व उन्होंने एक बयान दिया जो बहुत भावनाओं से लैस था, और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहना चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बेईमानी का आरोप लगाना चाहती है, लेकिन ये सही हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री बड़े ऑनेस्ट हों, बड़े ईमानदार हों, लेकिन जो सरकार वो चलाते हैं वो देश की दुनिया के लोग, भारत के लोग मानते हैं कि वो भ्रष्ट है। हम ये नहीं कहते हैं कि वो उनकी ईमानदारी पर शक है, लेकिन निश्चित रूप से मनमोहन सिंह के कैबिनेट के कई सदस्य जेल भी जाते हैं और जेल में थे। इसलिए जब मनमोहन सिंह इस बात को कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो लोगों को अब संदेह होता है। अभी जिस संदर्भ को लेकर के प्रधानमंत्री इतने उत्तेजित हुए हैं, ये कोयले के मामले से जुड़ा हुआ है, और उन्होंने कहा कि वो सार्वजनिक जीवन से त्याग दे देंगे अगर उनके खिलाफ एक भी प्रमाण या आरोप साबित होते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहेगी कि क्या ये बात सच नहीं है कि 2005 से लेकर के 2009 तक जिस मंत्रालय में 10 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप सीएजी कह रही है, क्या देश के प्रधानमंत्री उस कोयले विभाग के, जिसमें आवंटन, कोल ब्लॉक के आवंटन का आरोप लगाया गया है, क्या उस विभाग के कैबिनेट मंत्री थे या नहीं? भारतीय जनता पार्टी इस विषय को जानना चाहे। और जहां देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि बिल्कुल, ये जिसे हम ग्रैंड स्टैंडिंग कहते हैं, कि ये बिल्कुल गलत है, अगर ऐसा होगा तो हम इस्तीफा दे देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि इतने भावना से देश को संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है देश के प्रधानमंत्री को। हम उनके ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहते। देश के प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ये सलाह देना चाहेगी कि विशेष अनुसंधान का समूह गठित किया जाए, जिसे हम एसआईटी कहते हैं, और यदि हो सके तो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में ये पूरी जांच हो जाए। निश्चित रूप से अब देश के प्रधानमंत्री खुद कटघरे में हैं, और जैसे अंग्रेजी में कहावत है, जो शेक्सपियर की रचनाओं में देखा गया है, या वो शब्द है, दैट सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। देश के प्रधानमंत्री को इन सभी शंकाओं के ऊपर होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इन सभी सवालों पर देश के प्रधानमंत्री से इस विषय पर अपनी टिप्पणी चाहेगी। आपको नहीं लगता कि टीम अंदर पर्सनलाइज बात कर रही है इस तरह से? थैंक यू। लेट देम कट इट। चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जो आईपीएस ऑफिसर्स की पोस्टिंग है वो बिना स्टेट की कंसल्टेशन की जाती है। होम मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगाया है। विल डू इट सेपरेटली। बहुत बहुत देखिए, ये बात सच है कि आज पूरे भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई केंद्र बिंदु बना है तो निश्चित तौर से पूरे देश के सामने अन्ना हजारे बने हैं, और कहीं ना कहीं उनके टीम के सदस्यों की भी भूमिका रही है कि वो केंद्र बिंदु है भ्रष्टाचार के खिलाफ इस अभियान में। और जब उनके मन में संदेह उत्पन्न होता है तो उन्होंने कई विषयों को उठाया है, जिसमें वर्तमान में कोयले के आवंटन से संबंधित सीएजी के रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि सीएजी भी भारत का एक संवैधानिक संस्था है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठते हैं, उसी प्रकार से सीएजी भी देश का एक संवैधानिक संस्था है। जिस तरह से उच्चतम न्यायालय इस देश का संवैधानिक संस्था है, जिस प्रकार से चुनाव आयोग इस देश का संवैधानिक संस्था है, उसी प्रकार से सीएजी है। और अगर अन्ना हजारे की टीम के सदस्यों ने सीएजी का हवाला देते हुए देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ये आरोप लगाया है, तो मुझे लगता है कि स्वयं देश के प्रधानमंत्री को इसकी पुष्टि एक एसआईटी गठित करके पूरी जांच करा के लोगों के सामने स्पष्ट रूप से पेश होना चाहिए।